हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो टैक्स और क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके एक अपडेट वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर आईएमएफ का एक सेमिनार था जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हो रहे थे। तो यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स को लेके भी उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली, साथ में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बोली जो आपके लिए जानना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो वीडियोज़ हैं इसके लिंक वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे खुद इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम पहली जो क्लिप है जहाँ पर उन्होंने टैक्स को एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। We did realize there's a lot of things happening about transacting those assets, the crypto assets, which we don't recognize as currency. Because currency is that which is backed by a bank, the central bank of the country or the government of that country. So that is yet to happen in our country, and it is going to happen sometime this year. But because the volumes of such transactions outside of this was fairly huge, we also wanted to be sure that, and since there was no regulatory mechanism looking at them, we wanted to make sure money is being, or value of assets being transacted, if they are transacted in an unregulated environment, we were not sure if the, let us say, the FATF's money trail, as they say, travel route, travel line, is being tracked at all. And we were not even sure as to how we can keep a trail following of these transactions which were happening. After all, these were electronic codes eventually. So we wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%, and over and above that, there is a 1% tax deduction at source, which is also imposed on every transaction. So through that, we'll be able to know who's buying and who's selling it. And that 1% is not an additional tax over the 30% that I've imposed. It is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person is expected to pay. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. So we wanted to be sure when there was no regulation happening, these activities which were becoming now fairly extensive are kept an eye on, and there should be a financial implication on them, and therefore the tax. It wasn't as if we have legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for the sovereign, and that is why we've done this. तो जैसा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से टैक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये चीज़ बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं बाहर यहाँ पर हो रहे थे, तो उसको ट्रैक करने के लिए अगर आप देखेंगे FATF ने एक गाइडलाइन दी थी कि आप ट्रैवल रूल को इम्प्लीमेंट करिए। वो बेसिकली बोलता ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो वहाँ पर आप पूरी KYC डिटेल शेयर करेंगे कि आपने एक वॉलेट से अगर दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया तो वो जो दूसरा वॉलेट है वो कौन ओन करता है, उनका भी KYC वाला अकाउंट होना चाहिए ताकि वो ट्रैक रख पाएँ। तो उन्होंने बोला कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना था, उसका प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए हमने ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए 1% TDS यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि अगर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है दैट इज़ फाइन, लेकिन क्या वो 1% होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ट्रांजैक्शन ट्रैक करने हैं तो एक्सचेंज के बाहर जाते हैं उन ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS जो है फिर भी इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है उसके ऊपर ये TDS लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन है। एंड अगर देखेंगे, इनफैक्ट एक्सचेंज के फाउंडर्स को ही अभी तक ये नहीं पता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो स्पॉट पे लगेगा या किस पे लगेगा। ज़्यादातर एक्सचेंज के फाउंडर्स भी ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगा। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर 1% स्पॉट ट्रेडिंग पे लगता है तो वो वैसे भी ये पर्पस तो डिफीट ही कर देता है कि अगर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है तो एक्सचेंज तो सेंट्रलाइज्ड है, उससे बाहर तो पैसे जा नहीं रहे हैं, तो उस पर ट्रैक करने की क्या ज़रूरत है। एक्सचेंज सीधा डेटा गवर्नमेंट से शेयर कर सकता है। बाहर जाने के लिए अगर लगाते हैं तो दैट इज़ स्टिल फाइन, लेकिन क्या वो भी 1% होना ज़रूरी है? वो 0.1% या 0.01% भी तो हो सकता है, उससे भी ट्रैक किया जा सकता है। और ये ट्रैवल रूल जो है ग्लोबल गाइडलाइन है जो बाकी नेशंस भी इंप्लीमेंट करें रेदर देन पुटिंग TDS, लेकिन इंडिया में TDS का राउट लिया विच इज़ फाइन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो बाहर के ट्रांजैक्शन तो उस पर इंप्लीमेंट तो ज़्यादा बेटर है रेदर देन अगर वो स्पॉट के ऊपर भी लगा दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। और साथ में नो लॉस सेट ऑफ, जिसके ऊपर भी क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड आके बोलना ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी क्लैरिटी दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो रिसेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर हम देख चुके हैं।
डिफरेंट पेयर्स के ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पर जवाब आ चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि लॉस सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेकंड जो यहाँ पर क्लिप है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर हो गया, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल के यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। अब सेकंड क्लिप जो है यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर बात करी है। Risk which worries me more on the non-governmental domain is essentially you're looking at unhosted wallets through which across the borders, across the globe, this entire operation takes place. So regulating cannot be done by a single country within its terrain through some effective method. And for doing it across the borders, technology doesn't have a solution which will be acceptable to various sovereigns, at the same time applicable within each of the territory. Again, the risks involved, on which of course Ravi Menon elaborated, will have to be differentially approached, because for each user case the risks can also be different. So as long as the non-governmental activity of the crypto assets are through the unhosted wallets, regulation is going to be very difficult. But cross-border payments will become very effective, yes, through the central bank driven currencies. But even with all this said, unless there's going to be a global approach at regulating, and also an understanding of the technology even as it keeps evolving, to be on the top of things and to have technology-driven solutions to regulate and monitor, not so much to interfere, but of course to keep an eye that your anti-money laundering. I harp on that very much because I think the biggest risk for all countries across the board will be on the money laundering aspect and also on the aspect of currency being used for financing terror. So it is in these two. Otherwise, I don't see a reason why innovation such as this in fintech, whose fountainhead or whose source itself is to bypass many of the regulatory. Innovation is always disruptive. I don't look at it as negative feature. It's a right feature. Innovation is disruptive. But on an essential thing of asset or valuation, which might be monetized for funding other activities which are not so savory, I think regulation using technology is the only answer. But regulation using technology will have to be so adept and so nimble that it has to not be behind the curve, but be sure that it is on the top of it. And that's not possible if any one country thinks that it can handle it. It has to be across the board. Risk with तो जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न जो बताया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वो ये था कि यहाँ पर जो अनहोस्टेड वॉलेट्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं, अनहोस्टेड वॉलेट का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आपका प्राइवेट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, आपका हार्डवेयर वॉलेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट को आप यूज़ करते हैं जिसमें आप खुद यहाँ पर अपनी प्राइवेट की को होल्ड करते हैं, तो उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं और वहाँ पर अगर कोई इंसान इसको यूज़ करता है किसी गलत काम के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है जिसको हैंडल करने के लिए जो राइट टेक्नोलॉजी है अभी यहाँ पर है नहीं। तो वही एक कंसर्न यहाँ पर बनता है जिनके बारे में उन्होंने बोला है कि सारे नेशंस को साथ में काम करना पड़ेगा, एक नेशन इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। अगर हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो उसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेफिनेटली उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, लेकिन अनहोस्टेड वॉलेट का भी यहाँ पर रिस्क होता है अगर गलत लोग गलत चीज़ों के लिए उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बात करी, ये बोला है कि उसका यूज़ हो सकता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो वैसे इतने सालों से बिना क्रिप्टो करेंसी के पहले भी होता था, लेकिन हाँ डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी के साथ भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। एंड उसी में अगर देखा जाए मेन कंसर्न जो एक चीज़ यहाँ पर बनती है और जिस तरह से गवर्नमेंट का स्टांस मैंने इंडिया में देखा है, हम बहुत जल्दी बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट स्टांस चीज़ों को लेके लेते हैं और स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आते हैं। रीसेंट टैक्स लॉज बहुत अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पर बन जाते हैं जो ठीक है चीज़ों को रोकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को भी एकदम केज में डाल देते हैं ताकि जो गुड एक्टर्स हैं वो भी चीज़ों को इनोवेट और बना नहीं पाए। अभी एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। तो अब कंसर्न यहाँ पर ही आ जाता है कि जैसे इन्होंने बोला कि अनहोस्टेड वॉलेट्स, तो ऐसा नहीं हो आने वाले टाइम पे कुछ भी रेगुलेशन वगैरह आता है ये टोटली ये बोल दे कि आप अनहोस्टेड वॉलेट जो आपके प्राइवेट वॉलेट हैं आप उसको ओन ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करो। वो एक कंसर्न बन जाता है जो मेरा खुद का ओपिनियन है, वील हैव टू सी, लेकिन जिस तरह से स्टांस आया है मैं हमेशा वर्स के लिए ही सोचता हूँ। एंड इस चीज़ का सोल्यूशन ये हो सकता है कि अभी के लिए अगर आप देखोगे डेफिनेटली सारे वॉलेट्स को इस तरह से रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड देखिए गलत काम करने वाले
उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप रेगुलेशन लाओ, आप कोई भी करो, वो तो उसको गलत काम के लिए यूज़ करेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके रेगुलेशन से। फ़र्क ये पड़ जाता है यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं जो सही कामों के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो अभी तक FATF ने लिया है वो है यहाँ पर ट्रैवल रूल, कि अगर कोई भी वॉलेट है आप उसकी KYC कर दीजिए, आप गवर्नमेंट से शेयर कर दीजिए कि मेरा वॉलेट है, इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा प्राइवेट वॉलेट है, इसको मैं DeFi में यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे जो है कम से कम गवर्नमेंट अगर ट्रैक रखना चाहती है तो उनको वो पॉसिबिलिटी सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अभी के लिए तो यही सोल्यूशन है। तो यही एक थोड़ा कंसर्न बन जाता है कि गवर्नमेंट कहीं FATF के रूल को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से अथॉरिटीज़ होंगी जो उसको देखेंगे, ओवरसी करेंगे, कहीं उसकी जगह ये नहीं कर दे कि सीधे सारे प्राइवेट वॉलेट्स को ही बैन कर दो। तो वो भी एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह के स्टेप्स इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं कंपेयर टू एक थोड़ा ऐसा अप्रोच जिसमें रिस्क भी मिटिगेट हो जाए और टेक्नोलॉजी जो है वो सप्रेस नहीं हो। जो अभी तक अगर हम देखें कहीं ना कहीं कहीं हद तक टेक से इतना सप्रेस हो गई है, और अभी तक एक भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे क्रिप्टो को लेके इंडिया में आज तक एक भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने कहीं पर देखी नहीं है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल रेस है जिसमें बाकी कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रही हैं, हम कहीं पीछे यहाँ पर नहीं रह जाए। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, हाँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं, जो हम हमेशा कोशिश करते हैं सबसे पहले आपसे शेयर करें ताकि आप अपडेटेड रहें, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाकी अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा। बाकी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, टैक्स को लेके, तो हम हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले पोस्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।